regression is the most important topic, okay, in statistics. So what regression means? Tell me. See, correlation tells you about the degree of relationship between two variables, two or more variables. Now, what regression is? Tell me. It's basically a statistical. Okay, it's basically a statistical tool. Okay, using which you can predict the unknown values of one variable for the known values of other variable. Okay, so through regression, you can predict the values. Suppose you are given y in terms of b, y is equal to ax plus b is a line. Okay, so you can predict the value of y for the given value of x. Similarly, if you have another equation a dash y plus b dash, sorry. So for the given value of y, you can predict the value of x. Okay. So regression is basically a statistical tool which helps us to get to predict the values of unknown variable, okay, for the given values of known variable. Okay. So what is the difference between correlation and regression? So correlation only tells us about the degree of relationship, means how they are related to each other. Okay. But regression gives us the relationship between the two variables. ठीक है, मतलब आप regression tool से you can predict the value of unknown variable for the given values of known variable. So this is the basic difference between correlation and the regression. Okay, so regression is a statistical tool through which you can predict the values of unknown variable for the given values of known variable. ठीक है? Yes. क्या ये आपको पता होना चाहिए? What is the difference between correlation and regression? Okay. तो आपने इसके प्रॉब्लम्स किए थे क्लास में, if you remember, याद है? See, this is also the most important topic. ये आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि रिग्रेशन कोरिलेशन फर्दर आप जब भी स्टैटिस्टिकल कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें यूज होता है, ठीक है? तो आपको आना चाहिए दोनों कोरिलेशन एंड रिग्रेशन बोथ द टॉपिक्स वेरी क्लियरली. सो वी हैव नाउ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स. जैसे हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वैसे हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है? इसको हम कहते हैं BYX एंड BXY. So this is the regression coefficient of y on x, and this is called the regression coefficient of x on y. ठीक है? अब इसका जो फॉर्मूला है, इसके दो फॉर्मूले हैं. BYX, देखो, you can write BYX in terms of correlation coefficient. This is R into standard deviation y divided by standard deviation x. ठीक है? Similarly, you have the formula for BXY, which is R standard deviation x divided by standard deviation y. अब आप नोटिस करोगे, देखो BYX है, x क्योंकि बाद में है तो सिग्मा x डिनोमिनेटर में है, और y क्योंकि यहाँ पर बाद में लिखा है तो सिग्मा y डिनोमिनेटर में है, ठीक है? And if you multiply these two equations, what do you have? You have BYX into BXY is equal to R square sigma y by sigma x into sigma x by sigma y. These terms will be cancelled and you will have the relationship as R square is equal to BYX into BXY. ठीक है? तो जो आपकी R की वैल्यू होती है, R is nothing but plus minus under the root of product of both the regression coefficients. ठीक है?
अब आपको इससे क्या प्रिडिक्शन मिलती है कि आर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई तीनों का सेम साइन होता है। अगर आपने बी वाई एक्स की वैल्यू निकाली, वो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आर भी पॉजिटिव होगा। मीन्स यू हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर। लेकिन अगर ये दोनों नेगेटिव हैं, सो यू हैव टू टेक द नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि बी वाई एक्स पॉजिटिव है और बी एक्स वाई नेगेटिव है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। So all both the regression coefficients and the correlation coefficients, they all have same sign. Is that clear? हाँ जी बताइए। Yes, ma'am. है ना, क्लियर है? ठीक है, so we have now two lines of regressions. ठीक है, one line is y on x and other is x on y. Okay. रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्लियर है आप सबको? देखो, एक तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला है, एक ये है। ये आपको तब यूज करनी है व्हेन यू आर गिवन द वैल्यूज ऑफ आर, जब आपको आर गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स गिवन है। फिर आपको अगर आर गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई गिवन है, तो आप बी एक्स वाई का यहाँ से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये दोनों तभी यूज करने हैं जब आपको वैल्यूज गिवन हो। ठीक है, अदरवाइज वी हैव वेरी सिंपल फॉर्मूले फॉर दीज पी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। Okay, and what are those formulas? देखो, आपके पास जो रिलेशनशिप है आर स्क्वायर इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ओके, सॉरी, सो बी वाई एक्स, टेल मी व्हाट वाज द न्यूमरेटर ऑफ आर, इफ यू रिमेंबर, इट वाज n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, इफ यू रिमेंबर, यही था ना आर का न्यूमरेटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई रिमेंबर यही था, है ना, बी वाई एक्स। Yes, ma'am. है ना, तो बी वाई एक्स का ये न्यूमरेटर है, तो बी एक्स वाई का भी यही न्यूमरेटर होगा, क्योंकि आर स्क्वायर है इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। अब देखो, जब आप डेनोमिनेटर आर स्क्वायर करते हैं तो आर के डेनोमिनेटर में तो अंडर रूट था, है ना, अब तो वो अंडर रूट स्क्वायर करने से हट जाएंगे, इसलिए क्योंकि एक्स यहाँ पर पीछे है, तो n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वायर होगा, और यहाँ y पीछे है, तो n सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर होगा। बस ऐसे आपको फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो, ये r का स्क्वायर आएगा ही आएगा, क्योंकि r का जो फॉर्मूला था, अगर आप r का स्क्वायर करेंगे तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, आप करके देखना, तो ये आना चाहिए। ये आपको फॉर्मूले हमेशा ही यही वाले यूज करने हैं, दे आर स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड्स, जिसमें आप dx को कहते थे x माइनस a, है ना, और dy को कहते हैं y माइनस b, वेयर a and b are nothing but the assumed means of x and y series respectively। ठीक है, तो हमेशा हमें जब भी सीरीज गिवन होगी, हम बी वाई एक्स बी एक्स वाई के यही दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जब भी हमें y की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी होगी, तो वी हैव अ रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है, तो जब हमें मतलब y का जो बेस्ट एस्टिमेशन है वो y ऑन x से निकलेगा, तो हमारे पास जो रिग्रेशन इक्वेशन है, दैट इज y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो हमें सीरीज में x बार y बार भी पता होने चाहिए, और बी वाई एक्स तो हमें ये स्टेप डेविएशन मेथड से, शॉर्टकट मेथड से हम फाइंड आउट कर लेंगे।
ठीक है। सिमिलरली रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, मतलब x का बेस्ट एस्टिमेशन x ऑन y से निकलेगा, तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है। और ये जो दोनों ही रिग्रेशन इक्वेशंस हैं, इफ वन ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन इज x on y and this regression equation is y on x, okay, these two regression equations, they pass through the point called mean x bar y bar, है ना। अब देखो, अगर आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म याद हो, तो ये पॉइंट होता था जिससे लाइन पास करती है, और ये स्लोप होता है ना, y माइनस वाई बार इक्वल टू y माइनस जो भी पॉइंट y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, x1 y1 वो पॉइंट होता है जिससे लाइन पास करती है, और ये स्लोप होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये दोनों इक्वेशंस यूज करके यू कैन फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशंस, और यहाँ से आप वैल्यूज प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि रिग्रेशन ही एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जिससे आप value for unknown variables, you can predict the values for unknown variable for the given values of known variable। ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशंस यहीं से आप पहले कोफिशिएंट्स निकालेंगे, फिर मीन निकाल कर ये इक्वेशन लिखेंगे, और y का बेस्ट एस्टिमेशन y ऑन x से निकलेगा, x का बेस्ट एस्टिमेशन x ऑन y से निकलेगा। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। So we have three type of questions which can be asked based on regression. Okay. So first is very simple. So we are, I'm starting with the very first type of question. See, you are given, the question is, जो मैंने PDF शेयर किए हैं उस पर भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो you are given the advertising expenditure and data of sales। ठीक है। तो advertising expenditure, it is denoting by X and it is denoting sales by Y, and both are in lakhs, rupees lakhs। ठीक है। And you are given X bar and Y bar and standard deviation also। Okay, so let me call this as mean and SD and correlation coefficient। देखो, एक टाइप का ये क्वेश्चन होता है, मीन ऑफ एक्स दिया है 10, मीन ऑफ सेल्स इज 90, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12। ये आपको डेटा गिवन है, एंड बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशंस। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन, और सेकंड में आपको निकालना है सेल्स की वैल्यू। यू हैव टू प्रिडिक्ट द सेल्स when advertising expenditure is 15 lakhs। Okay, थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, what should be advertising budget or advertising expenditure, what should be the advertising expenditure if company wants to attain a sales target of rupees 120 lakhs। ठीक है। तो दोनों चीजें ही पूछी हैं आपसे। सेल्स मतलब y पूछा है, जब आपको x गिवन है, यहाँ आपसे x पूछा है और y गिवन है। ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड बोथ द रिग्रेशन इक्वेशंस। ओके। तो आप देखो, जो आपको डेटा गिवन है, यहाँ से अगर मैं मीन की बात करूँ तो x बार हमें पता है, दिस इज माय x बार, दिस इज माय y बार, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन x, and this is the standard deviation y, and this is correlation coefficient r। सब कुछ आपको गिवन है, and from here you can find byx। What is byx? Tell me which formula should I use over here?
आर सिग्मा आर वाला है ना, आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स, और बी एक्स वाई के लिए हम यूज करेंगे आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई। तो आर 0.8 है, सिग्मा वाई है 12, सिग्मा एक्स है आपके पास 3। तो ये वैल्यू बताएं मल्टीप्लाई करके। आर है आपके पास 0.8, सिग्मा एक्स इज 3, सिग्मा वाई इज 12। टेल मी दीज वैल्यूज प्लीज। ये कितना होगा, क्विकली प्लीज बताइए। टेल मी प्लीज। BYX 3.2. 3.2. Okay, and Yes, what is ma'am. bxy? 0.2. 0.2. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो अभी आपके पास बी वाई एक्स बी एक्स वाई दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, दोनों ही हैं, और आपके सॉरी आपके पास मीन भी है, और सारी वैल्यूज हैं, सो यू कैन इजीली राइट द रिग्रेशन इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन होगी y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। So this would be y minus y bar. Y bar is 90, byx is 3.2, x minus x bar is 10. ठीक है. So we can write this in terms of y. So y equal to 90 plus 3.2x minus 32. Tell me. है ना? तो y की वैल्यू है आपके पास 3.2x plus 90 minus 32 is how much? Tell me. 58. 58। Yes, ma'am. ठीक है। तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन है, y है आपका सेल्स। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज सेल्स ऑन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, मतलब y ऑन x है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि अगर आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर 15 लाख है तो सेल्स कितनी होगी, सेकंड पार्ट। सो यू कैन ऑलवेज इवैल्यूएट द सेकंड पार्ट। सो फॉर द सेकंड पार्ट y is equal to 3.2 into 15 plus 58। तो अगर आप 15 लाख एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करते हैं तो आपकी सेल्स कितनी होगी, टेल मी। सेकंड पार्ट, वी आर डूइंग द सेकंड पार्ट, बताइए मल्टीप्लाई करके प्लीज। आई डोंट हैव कैलकुलेटर विद मी। 106. 106 lakhs। अगर क्वेश्चन में यूनिट्स मेंशन्ड है तो आपको आंसर में यूनिट्स लिखनी पड़ेंगी। सो y इज 106 lakhs की सेल हो सकती है अगर आप एडवर्टाइजिंग पे 15 लाख स्पेंड करते हो, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन x and y।
So this is the third part of the question. If sales is 120 lakhs, मतलब y आपको given है and you are supposed to find the value of for x. तो x होगा 0.2. x मतलब आपको कितना एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करें कि आपका सेल्स टारगेट 20 lakhs पूरा हो जाए. ठीक है, तो आपको y को 120 पुट कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी. बताएं x की वैल्यू क्या होगी बेटा? 16. ठीक है, तो अगर आपको 120 लाख का टारगेट चाहिए सेल्स का, तो आपको 16 लाख स्पेंड करने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, जिसमें आपको डायरेक्टली टेबल में ये वैल्यूज गिवन होंगी. इन वैल्यूज के बिना आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं. ठीक है, तो ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम लाइक यू आर गिवन द सीरीज, एक्स और वाई की सीरीज गिवन होगी. आपको शो करती हूँ जैसे देखो, जैसे ये क्वेश्चन है बेटा 23rd. If you see the question number 23rd, the data given below relate to the scores obtained by 9 salesmen in an intelligence test and their weekly sales. ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट और वीकली सेल्स हैं इन लैक्स ऑफ रुपीज. तो ये सेल्समैन का नंबर है, ये उसका टेस्ट स्कोर है और ये सेल्स है उसकी. obtain the regression equations of sales on intelligence test. तो अगर आप सेल को y कहते हो और इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर को x कहते हो, तो आपको x और y निकालना है. नहीं, y और x, क्योंकि सेल्स ऑन इंटेलिजेंस स्कोर है, तो y और x निकालना है. और फिर if a salesman has to obtain a score of 65, what would be his expected sales? तो सेल्स की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, मींस आपको y प्रेडिक्ट करना है. ठीक है, अब अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट स्कोर को y लेता है और सेल्स को x लेता है, तो वो अकॉर्डिंगली x और y कैलकुलेट करेगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, जो भी आप जिस वेरिएबल को एज्यूम करते हो उसको वही इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है. ठीक है, जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन में देखो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और सेल्स है, तो एस्टिमेट द सेल्स फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 80 lakhs. तो y को एस्टिमेट करना है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर आपका x है, तो अगर मैंने एडवर्टाइजिंग को x लिया है और सेल्स को y लिया है, तो आई विल फाइंड y ऑन x. और अगर कोई रिवर्स लेता है तो वो x और y फाइंड आउट करेगा. ठीक है, देखो 25th वाला टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं. ठीक है, बाइवेरिएट आपके सिलेबस में नहीं है. इसी तरह देखो ये वाला टेस्ट स्कोर और सेल्स है, ये भी सेम है. जैसे बिजनेस टर्नओवर है, ठीक है, और स्टाफ ऑफ द कंपनी फॉर 8 years इज गिवन. एक प्रॉब्लम हम करेंगे इस टाइप का. ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन है. ठीक है, 41. सी, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड द 2 रिग्रेशन इक्वेशंस. ठीक है, वो हम निकाल लेंगे. The coefficient of correlation between the marks पहले तो निकालना है. Correlation we can always find r, small r की वैल्यू. जब तक रैंक की बात नहीं करी होगी हम रैंक नहीं निकालेंगे. और वैसे भी अगर हम क्वेश्चन को पहले जज करेंगे कि उसमें क्या निकालना है, कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन निकालना है या रैंक कोरिलेशन निकालना है. अगर सिंपली कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोला है तो आप रैंक कोरिलेशन नहीं निकालेंगे, कार्ल पियर्सन ही निकालेंगे, स्मॉल r. ठीक है, the most likely marks in statistics when the marks in eco is 30. तो स्टैट्स के मार्क्स को प्रिडिक्ट करना है जब इको के मार्क्स 30 हैं. अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको y और x वेरिएबल एज्यूम करके दिए हैं तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, पहले से उसने बोला स्टैट्स को y लेना है और इको को x लेना है, तो अब आप चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, अगर आपको x और y नहीं दिए होते तब हम अपनी मर्जी से किसी को भी y और किसी को भी x ले सकते हैं. ठीक है, तो अब आपसे देखो स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स पूछे हैं, इको के मार्क्स 30 दिए हैं, मतलब y ऑन x निकालना है इसमें आपको. ठीक है, हाँ जी, ओके.
अब ये देखो, जैसे ये है द फाइनेंशियल एनालिस्ट obtain the following information relating to the return on security and that of market portfolio M for the past 8 years. Develop an estimating equation that best describes these data. ठीक है. Find the coefficient of determination is nothing but R square. ठीक है. Coefficient of determination R square होता है. ठीक है. तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस. अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको ये आपने एक्सरसाइजेस मांगी थी, मैंने नहीं भेजी थी. ठीक है, लेट मी नोट इट डाउन. मैं अभी सेंड करती हूँ आपको. ठीक है मैम, रिग्रेशन में भी नहीं एक्सरसाइज. हाँ, रिग्रेशन की और कोरिलेशन की एक्सरसाइजेस मैंने नहीं भेजी थी. आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी. मैंने अब नोट कर लिया. आई विल सेंड आफ्टर दिस क्लास. ठीक है. इसमें ना कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी हैं. देखो, ये क्वेश्चन पहले इसने बात की इकोर स्टैट्स की. अब यहाँ पे फिर से इकोर स्टैट्स और मार्क्स 30. तो कुछ क्वेश्चन मेरे पास एक और बुक है, उसकी मैं एक्सरसाइज की भेज दूंगी आपको. इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी हैं. अच्छा, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 53 इफ यू कैन सी. इसमें बोला फाइंड द लाइंस ऑफ रिग्रेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कमेंट. देखो, डायरेक्टली आपको सारी वैल्यूज गिवन है ना. तो जो dx dy है उसको हम सिर्फ xy से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है. इसमें सारी वैल्यूज आपको गिवन है. dx dy की जगह सिग्मा xy हो जाएगा. जो dx स्क्वायर है उसकी जगह सिग्मा x स्क्वायर हो जाएगा. जहाँ dx है वहाँ सिग्मा x यूज कर लेंगे. तो हम अगर हमारे पास अगर इस टाइप का डेटा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वी कैन सिंपली यूज दिस वैल्यू टू फाइंड एनीथिंग, एनी कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स. है ना. जो आपका फॉर्मूला है बेटा, जो सिग्मा bxy वाला फॉर्मूला है. सॉरी, अगर मैं इसकी बात करूं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x और y, तो मैं इसको ये बोलती हूँ ना, इट इज n इंटू सिग्मा dx dy. तो dx dy की जगह सिग्मा xy हो जाएगा. फिर सिग्मा dx सिग्मा dy तो सिग्मा xy हो जाएंगे. देन क्योंकि y पीछे है, अब यहाँ सिग्मा dy स्क्वायर होना चाहिए था, तो y स्क्वायर हो जाएगा. और सिग्मा dy का होल स्क्वायर तो सिग्मा y का होल स्क्वायर हो जाएगा. दैट्स इट. यहाँ n होता है. ठीक है. तो आप अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर लेंगे, है ना. और हम इसकी अगर ये सारी वैल्यूज अगर यूज करें, क्वेश्चन नंबर 53, है ना. देखो, दिस क्वेश्चन इज आल्सो गुड. 51. The following table shows the age and blood pressure of 8 persons. Obtain the regression equation of y on x. अब इसने एज को x लिया है और ऑलरेडी ब्लड प्रेशर को y बोला है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे. अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है जो वेरिएबल नेम्स, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे. फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन हु इज 49 years old. ठीक है. तो एज आपको दी है, बीपी आपको प्रिडिक्ट करना है. तो बीपी का एस्टिमेशन है. ठीक है. बीपी मतलब y. तो कौन सी इक्वेशन निकलेगी इसमें? y on x, बताइए. yes, है ना. तो अभी हम एक क्विकली ना एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं. तो ये हो जाएगा आपका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. you are sorry, I was muted.
क्लास देखो, ये अगर हम एज के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर जो आपको दिया है, सॉरी आई हैव रिटन अ रॉन्ग क्वेश्चन, so this is not the actual data. चलो दोबारा लिख देते हैं, सॉरी जी, नहीं है। एज एंड ब्लड प्रेशर, सॉरी फॉर दैट। एज है 52, ब्लड प्रेशर इज 62, एज 63, बीपी इज 53, एज 45, बीपी 51, एज 36। अब ये यूनिट्स पता नहीं क्या है, 36 और 25 दिया है, यूनिट्स नहीं दिया है। You have to predict the blood pressure, ठीक है, if age is 49 years, ये आपको प्रिडिक्ट करना है। बीपी, तो बीपी मतलब वाई प्रिडिक्ट करना है, तो कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे हम, बताइए। वाई ऑन एक्स, यस, बीपी आपको वाई है, एज आपका एक्स है, ठीक है। एक और बात, अगर आप ये वाला डेटा देखें जो मैंने पहले लिखा था, वो एज और बीपी बेसिकली नहीं है, वैसे ही कुछ डेटा गिवन है, तो आप इस डेटा को देखो, देखो जब एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर डेटा में यू विल हैव पॉजिटिव कोरिलेशन, है ना। तो फॉरगेट अबाउट इट, जो मैंने सेकंड लिखा है एज और बीपी, वो वाले पर हमें काम करना है। तो अब ये देखो, अगर मुझे वाई और एक्स निकालना है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी निकालना पड़ेगा, है ना। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स होगा n सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, एक्स बार वाई बार भी चाहिए, तो एक्स बार वाई बार के लिए तो हमें इनको ऐड करना पड़ेगा पहले, तो आप जल्द क्विकली ऐड करके बताएं ये क्या वैल्यूज आएंगी, या आप अज्यूम्ड मीन मेथड से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक्स बार वाई बार ना ऐसे ऐड करके ही निकाल लीजिएगा। अब बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू 8 है यहाँ पर, ठीक है। तो हम ना एज्यूम्ड मीन पहले चुन लेते हैं, इसमें से क्या लें बोलो, dx dy करना है ना, देखो 36 को ले लें, यहाँ से 36 ले लेते हैं, यहाँ से 79 ले लेते हैं, बोलो, या 60 ले लें, 33, कुछ भी ले सकते हो सीरीज में से, ठीक है। चलो 51 ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट मी टेक दिस एज a और ये b, तो क्विकली बताएं dx क्या होगा, dx will be x minus a, so if you are using capital X तो capital यूज करेंगे, स्मॉल तो स्मॉल यूज करेंगे, ठीक है। तो dx ये हो जाएगा and your dy will be y minus b, बोलो बेटा। then we'll have dy dx dy का कॉलम, dx स्क्वायर कॉलम एंड dy स्क्वायर कॉलम, ठीक है। चलिए बताइए, what will be 52 minus 36, if you have calculators please। 16. 16, Yes, ma'am. ठीक है। 63 minus 36, 27. 27, good। 45 minus 36, 9. 9, this will be 0। 72 minus 36, 36. 6,
Class, am I audible? Sorry, actually, screen was not visible. Yes, I have ma'am. reshared it. ठीक है. 65 minus 36. 65 29. minus 30. 29. Good. 47 minus 36. Please tell me. 11. And 25 minus 36 would be negative. Minus 11. Minus 11. Similarly, find the dy, please. 11 to How much? 11. 2. 2 Yes. 0. minus 26. Minus 26. 28. Minus. No, plus 28. Minus 8. Minus 8. Okay. 9. Hmm. Minus 18. Minus 1 8. Yes. Okay. Yes. Multiply dx and dy, please. 16 into 11. 176. Okay. How much is it? Dx into 16 into 11 quickly. 1. 176. 176. 6. This will be 50. 54. This will be 0. This will be 0. 36 into 28. 1008. 1008. 1. Double Okay. 008. Good. Minus 21. Minus. Minus 29 into 8. 232. Minus 232. Minus 232. This will be 99 and this will be 198. minus plus 198. 198. Very good. Okay, good. What will be dx square? 16 into 16 is 256. 27 whole square. 729. So this type of calculator you need. Okay. Actually, ये खराब हो गया है. This is not working. Its screen has turned black. तो इसमें ना एक फंक्शन होता है बेटा कैल्स फंक्शन. ये जो कैल्स दिख रहा है ना आपको, इसका बहुत यूज है. आप क्या करते हो जब आप अल्फा प्रेस करके लिखोगे ना x, जैसे मैंने लिखा अल्फा के साथ x लिखा, तो जब भी आप x प्रेस करोगे अल्फा के साथ, यस यही होता है x के लिए. फिर आपने प्रेस किया तो जब आप कैल्स बटन प्रेस करोगे ना, ये कैल्स, तो यहाँ से आपसे पूछेगा व्हाट इज x. यहाँ पे लिखा आएगा व्हाट इज x. तो आप x को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देते रहोगे और सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके दिखाएगा. ठीक है. सो यू नीड अ साइंटिफिक कैलकुलेटर. कोरिलेशन रिग्रेशन के लिए तो चाहिए ही, प्लस जो आपका कर्व फिटिंग का टॉपिक है वो तो आप बिना कैलकुलेटर के कर ही नहीं सकते. उसमें तो यूल बी नीडिंग लॉग की वैल्यू, एंटी लॉग, नेचुरल लॉग सब चाहिए. तो या तो आप ऐसा कैलकुलेटर ले लें, लेकिन इसमें कैल्स फंक्शन होता है. एक और कैलकुलेटर है, आई थिंक ये लास्ट टाइम लॉकडाउन में दोनों आई डिडंट केयर अबाउट देम, तो जब देखा तो दोनों खराब हो गए थे. इसमें कैल्स फंक्शन नहीं होता इस वाले में. ठीक है. तो बेटर है कि आप ये वाला ले. ये वाले कैलकुलेटर में होता है कैल्स फंक्शन. ठीक है. कैल्स का आगे भी यूज है कि आप कोई भी इक्वेशन, कोई रैंडम इक्वेशन आपने लिखी एंड यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट रैंडम इक्वेशन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई. तो आप कैल्स से प्रेस करते हैं ना, आपसे एक्स पूछता है और आप एक्स एंटर करते हो, तो यू विल गेट all the details, all the values, correct values. तो ये वाला बेटर है, ये वाला ले. इसमें आई थिंक ये पुराना वर्जन है तो इसमें इसलिए कैल्स नहीं है. तो कैलकुलेटर जरूर खरीद लें. ठीक है. जस्ट ऑर्डर देम.
dx स्क्वायर, ये बताए 27 का स्क्वायर बेटा 729. 729. Okay, Yes, 9 ma'am. square is 81. It will be 0. 36 का square 1296. 196. 1296. 36 का 1296. 1296. Okay, good. 841. Okay. What will be dy square? dy square is 121. 2 का 4 हो जाएगा. 26 का square बताएंगे. 26 और 28 का 676 780 26 का कितना है? 676 676. 676 और 28 का 784. ओके, वेरी गुड. ठीक है, तो आप अब इन सबको ऐड करें क्विकली, क्योंकि आपको इसका ये सारी वैल्यूज चाहिए बच्चे, ये सारे सम चाहिए होंगे. ठीक है, ऑल दीज वैल्यूज यू नीड. सबके सम बताएं. सारे स्टूडेंट्स अलग अलग का सम कर लें. कोई dy स्क्वायर करे, कोई dx स्क्वायर करे, तो क्विकली क्वेश्चन हो जाएगा. X105. 405. ये 405 है. ठीक है, Yes, ma'am. Y406. ओके. सिग्मा dx, सिग्मा dy, dx dy. देखो, इस पर्टिकुलर टेबल से ना आप आर भी निकाल सकते हो. तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें आपसे आर भी पूछा है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी पूछे हैं, तो आप इजीली निकाल सकते हो ये तीनों चीजें. हम और dy रिग्रेशन square इक्वेशंस 2054 dy स्क्वायर yes ma'am 2054 कितना 2054. yes ओके. ma'am अदर मैम वैल्यूज 2138 है 2138 क्या dy स्क्वायर? हाँ जी, 2138 क्या है? आप तो प्लीज DX वेरीफाई minus करें. 2. लेट मी. dx is -2. Okay, what is dy? dx is -2. नहीं, dx -2 कैसे होगा? अच्छा, ये दोनों कैंसिल होंगे, बाकी तो ऐड होंगे. Do the calculations carefully, please. dy square 2138 dy square is dy स्क्वायर 2138. करेक्ट है 2054 ही होगा. हाँ, 2054 होगा बच्चे. चेक करो बेटा एक बार आप लोग, क्योंकि यही कैलकुलेशंस आपका क्वेश्चन गलत करेंगे अगर पेपर में dx हुआ तो. 170 dx कितना राखी? 170 117. 117. Okay, good. dx What is square आ रहा है dy? 3445 3445. yes ma'am DY What minus about dy 2. and -2? Yes, ma'am. Sure. ठीक Yes, है. What is dx ma'am. dy? dx dy. $1303. 1303. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है. सारी वैल्यूज आ गई हैं. अब हम क्विकली बी वाई एक्स निकालेंगे. ठीक है, मैम एक बार dx dy बी शायद गलत है डी एक्स डी वाई चेक कर लें. नहीं मैम सही है सही है सही है सही है ना? ठीक है, तो क्विकली वी विल फाइंड बी वाई एक्स नाउ. बी वाई एक्स विल बी n into sigma dx dy minus sigma dx sigma dy divided by n. सॉरी, x पीछे है तो x होगा यहाँ पे, है ना? सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx होल स्क्वायर.
x पीछे है तो x ही डिनोमिनेटर में होगा। n हमारे पास 8 है। सिग्मा dx dy, सिग्मा dx dy है 1303। ठीक है, सिग्मा dx था आपके पास 117 और डी सिग्मा dy वाज -2, 117 और -2, n 8 है। सिग्मा dx स्क्वायर इज 3445। ठीक है, minus sigma dx whole square. Sigma dx was 117 whole square. Tell me what this value will be. बताइए मल्टीप्लाई करके प्लीज। Tell me what is byx. Eight into 1303. It is 10424. Yes. 117 into 2 is 234. I am using the phone's calculator. And 1.20 is Check. the answer. Okay, okay. How much is it, Raki? 1.20. 1.201. 1.201. Okay. ये ठीक है, ऐसे ही होगा ना? ठीक है। ये ठीक है राखी, ये ठीक आ रहा है आंसर। ओके, आई होप दिस इज करेक्ट। ठीक है, देखो अगर बी वाई एक्स मोर देन 1 है ना तो बी एक्स वाई लेस देन 1 आएगा। क्यों आता है? क्योंकि आर स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई और आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। तो अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट आपका मोर देन 1 है तो दूसरा लेस देन 1 होगा ही। ठीक है, तो नाउ अच्छा अब ये बताओ वाई बार कैसे निकलेगा? वाई बार विल बी सिग्मा वाई बाय एन और जो x बार है दैट वुड बी सिग्मा x बाय n। तो n तो आपके पास 8 है। ठीक है, n 8 है। व्हाट वाज सिग्मा x एंड सिग्मा y? लेट मी चेक। देखो सिग्मा x था 405, सिग्मा y था 406। टेल मी these values please. 406 by 8, 50.75। मैम की वैल्यू मैम बाय एक्स की वैल्यू 0.76 थी। सॉरी। किसकी वैल्यू बेटा? मैम बाय एक्स की बी एक्स वाई। यस मैम 0.76। ये गलत है? यस यस मैम, मेरी भी 0.76 आ रही है। अच्छा चलो बताओ। 0.76 आ रही है। ठीक है, तो बी एक्स वाई मोर देन 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, गुड। एक्स बार बताओ। एक्स बार वाई बार ठीक है। 50 पॉइंट, ये ठीक है दोनों। ठीक है, अच्छा अब रिग्रेशन इक्वेशंस लिखो। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। और आपसे पूछी ही y ऑन x है तो हम y ऑन x ही निकालेंगे। जो जितना पूछा है उतना ही काम करना है। तो y माइनस वाई बार 50.75, बी वाई एक्स 0.76, x माइनस एक्स बार
50.625, ठीक है। और देखो x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर इफ एज इज 49 इयर्स, ये क्वेश्चन था आपके पास। अब देखो एज अगर 49 इयर्स है, मतलब x अगर 49 है, तो y की वैल्यू निकालनी है। तो एज को हम 49 पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप एज 49 पुट करोगे यहाँ पर, तो व्हाट विल यू गेट? तो यहाँ से आई विल हैव y इज इक्वल टू 50.75 को हम राइट पे ले जाते हैं, ठीक है। फिर आएगा प्लस 0.76x माइनस 0.76 और 50.625, इज इट 38.475? यस तो है ना, y की वैल्यू आ गई। अब हम x को, जो हमारा ये x है ना, इस वाले x को मैं 49 पुट करूंगी, ठीक है। तो जब आप x को 49 पुट करेंगे, तो इफ x is 49 years, so we have to find the BP. BPY will be equal to 50.75 plus 0.76 into 49 minus 38.475। अब ये बताइए ब्लड प्रेशर कितना होगा अगर एज ये है तो? 49.52 कितना? 49.52। ओके, मैम अगर इसी इक्वेशन में x की जगह y पुट कर देंगे तो नहीं होगा वो, तो मतलब बेस्ट एस्टिमेशन नहीं होगा बच्चे। मतलब जो आपका बेस्ट एस्टिमेशन है ना एक्स का, हाँ 49.515 आ रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी द ब्लड प्रेशर ऑफ द पर्सन इफ एज इज 49 इयर्स, ठीक है। एक बार चेक करते हैं इसको। देखो अगर हमारे पास हमने y और x निकाली है ना, और हम उससे, मतलब आप y और x से y का ही बेस्ट एस्टिमेशन कर सकते हो। x का बेस्ट एस्टिमेशन x ऑन y से होगा। मतलब अगर आप सेम इक्वेशन से बीपी देकर एज निकालना चाहते हो, वो आप नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि y ऑन x इक्वेशन आपकी बीपी ऑन एज है ना। y ऑन x इज योर बीपी ऑन एज, ठीक है, क्योंकि बीपी आपका y रिप्रेजेंट कर रहा है और एज आपकी x थी, है ना। तो सेम इक्वेशन से आप नहीं कर सकते, इसलिए वी हैव टू रिग्रेशन इक्वेशंस, दिस इज द रीजन, एंड टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आल्सो, ठीक है। एंड बोथ द रिग्रेशन लाइंस पास थ्रू द मीन, मीन से पास करती है, मैंने बताया था ना आपको, दे बोथ पास थ्रू द मीन। तो जब भी आपको y का एस्टिमेशन करना है, बेस्ट एस्टिमेशन, तो y ऑन x से होगा, और x का अगर बेस्ट एस्टिमेशन करना है तो x ऑन y से होगा, ठीक है। ठीक है, so this is all regression, ठीक है। बताओ रिग्रेशन में कोई डाउट है तो? मैम और किसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें? देखो इसमें मेनली तो यही दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक तो आपको ये जिसमें वैल्यूज डायरेक्टली गिवन होती हैं और आप ये वाले फॉर्मूले यूज करते हो। एक इसी टाइप की होती है जिसमें सीरीज गिवन होती है और आप तब सारे कोफिशिएंट्स निकाल सकते हो इन फॉर्मूले से। इससे इसी टेबल को यूज करके आप कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकाल सकते हो, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। तो यही दो टाइप के क्वेश्चन है। एक और टाइप का रैंडमली क्वेश्चन होता है जिस जो जनरली इज नॉट I mean, but if you have two regression, suppose you have two regression equations directly, ठीक है, और आपको ये नहीं पता कि कौन सी इक्वेशन कौन सी वाली है, ठीक है, तब आप यूज करोगे इसको। जैसे मैं अगर आपको कहती हूँ दिस, सपोज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपको अगर सपोज यू वांट टू फाइंड, ये अगर आपके पास है, ठीक है। अब इसने देखो आपको बोला कि दो इक्वेशंस हैं, उसको पूछा है कि दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस हैं, तो फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है आपको y on x। तो पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन y on x है और कौन सी x on y है, और फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे। सिमिलरली 38 क्वेश्चन भी सेम है,
गिवन द रिग्रेशन इक्वेशन, ये दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस हैं। अच्छा, ये तो सेकंड मोमेंट्स की बात करी है इसने, ये है मींस यू विल बी गिवन द रिग्रेशन इक्वेशन एंड यू हैव टू प्रेडिक्ट, जैसे ये वाली है, ठीक है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। उसमें आपको इक्वेशंस डायरेक्टली गिवन होंगी और आपको बताना होगा कि कौन सी इक्वेशन x on y है और कौन सी y on x है, ठीक है। Okay, let's do one problem like that also. Yes, ये देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 45, if you can see 45. In a laboratory experiment on correlation research study, the equation to the two regression lines were found to be these. लेकिन अब इसमें ये नहीं पता कि कौन सी इक्वेशन x on y है और कौन सी y on x है, ठीक है। Find the means of x and y. Also work out the values of regression coefficients and the correlation coefficient between the two variables. तो एक इस टाइप का भी प्रॉब्लम होता है जिसमें आपको, चलो हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 45 ऑन पेज 270, जो मैंने आपको पीडीएफ, ये मैं अभी शेयर करूंगी आपके साथ, इसका एक्सरसाइज का पीडीएफ, ठीक है। तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में ना दो इक्वेशंस आई हैं, 2x minus y plus 1 equal to 0, और एक आई है 3x minus 2y plus 7 equal to 0। आपको नहीं पता कि मीन क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी x on y है, कौन सी y on x है, और कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकालना है। तो इसमें ना बेटा हम हिट एंड ट्रायल से जाते हैं। दिस इज योर थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देखो, अगर मुझे नहीं पता कि कौन सी प्रॉब्लम कौन सी वाली है, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं इसको, suppose I call this equation as x on y randomly. Let us suppose this is x on y and this is y on x. Suppose मैंने इसको suppose कर assume करा है। अब अगर पहले तो मीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि calculating mean is again very simple. So let me call this as first equation and this is second equation. तो अगर ये, क्योंकि हमें पता है कि both the regression lines pass through mean, तो अगर ये मीन से पास करती हैं तो 2x बार माइनस y बार विल बी -1 एंड 3x बार माइनस 2y बार विल बी -7, क्योंकि ये मीन से पास करती हैं, तो मीन सेटिस्फाई करेगा इन दोनों को। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो यू हैव 4x बार, ठीक है, माइनस 2y बार इज -2, you have 3x bar minus 2y bar is -7. Now subtracting these two, ऐसे ही करते हो आप, ये तो कैंसिल हो जाएगा। So you have minus x bar is 5, मतलब x bar is -5, no, plus x bar, yes, x mean is x bar is 5, so what will be y bar, बताइए। Substitute the value in this equation. Therefore 2 into 5 minus y bar is -1. Y bar is 11. Is it 10 plus 1 11? बोलो, ये बात समझ में आती है आपको? How to find mean? Class? Yes. है ना? देखो, पहला पार्ट तो बहुत सिंपल था। पहले पार्ट में उससे पूछा था व्हाट इज द मीन ऑफ x एंड y सीरीज। तो क्योंकि हमें पता है कि बोथ ऑफ द रिग्रेशन लाइंस दे पास थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड मीन, तो अगर मीन से पास करती हैं तो दोनों इक्वेशंस को मीन सेटिस्फाई करेगा। तो आप x बार y बार इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे। वैल्यूज पुट करने के बाद यू विल हैव, बस उसको बैलेंस कर लेना और x बार y बार आ जाएंगे। ये तो है, मतलब जो आप रैंडमली कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट मीन्स। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड कि कौन सी लाइन x on y है, कौन सी y on x है, और रिग्रेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होंगे। तो जो मैंने एज्यूम किया है वो है x on y, ये है, और y on x मैंने कहा ये है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन इज, इफ इक्वेशन 1 इज x on y, so I can write 2x is equal to y minus 1, means I can write x is equal to 1 by 2y minus 1 by 2, ठीक है। तो जो y के सामने वाला होगा वो bxy होगा,
क्योंकि मैंने x और y लिखी है इक्वेशन। y का जो कोफिशिएंट होगा वो मेरा bxy हो जाएगा, ठीक है। ओके डन। अब मैं कह रही हूँ कि अगर इफ सेकेंड इक्वेशन इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, तो मैं y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकती हूँ। तो I can write 2y is equal to 3x plus 7. Means I can write y is equal to 3 by 2x plus 7 by 2. क्योंकि मैंने इसको y on x कहा है, इसलिए मैं y को इन टर्म्स ऑफ x लिखूंगी, ठीक है। अब जो x का कोफिशिएंट होगा वो होना चाहिए byx, तो byx आ गया 3 by 2, ठीक है। अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये वैल्यूज ठीक है? ये हम ऐसे वेरीफाई करेंगे क्योंकि मुझे पता है आर स्क्वायर होता है byx इंटू bxy, तो r इसको वेरीफाई करके बताएगा, ठीक है। तो byx है 3 by 2 और ये है 1 by 2, तो ये आ गया 3 by 4, तो r हो जाएगा अंडर रूट 3 by 2 which is 1.732 by 2. So this value will be something 0.8 or something, बताओ, है ना? ये होगी ये क्लास 1.732 divided by 8 डिवाइड बाय 2 है ना, 0.866। अब आप पूछोगे कि मैम हमने इसको पॉजिटिव क्यों एज्यूम करा है? क्योंकि byx भी मेरा पॉजिटिव था और xy byx दोनों पॉजिटिव थे, तो मैंने r को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वैल्यू ले ली क्योंकि r स्क्वायर 3/4 था। तो अब ये देखो जो r है, r की वैल्यू जो भी आपकी आ रही है, इज इट वैलिड? इज इट बिटवीन -1 and 1? यस। इसका मतलब जो मैंने एजम्पशन की थी कि ये इक्वेशन x1y है, ये y on x है, वो ठीक है, ठीक है। तो आप अपना आंसर लिख देंगे कि ये byxy है और ये byx है और r 0.8 है, 866 है। मान लीजिए मैंने ये गलत एज्यूम किया होता, तो आपकी r की वैल्यू ये नहीं आती, मतलब करेक्ट नहीं आती, तो आप कहते हैं कि r assumption is wrong, therefore above line is y on x and this line is x on y, और फिर से आपको ऐसे ही रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने पड़ते, ठीक है। तो करना क्या है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में? ऐसे ही सबसे पहले मीन्स निकाल लीजिए, मीन में तो कोई रोल ही नहीं है किस लाइन का। फिर जब आप assumption करते हैं तो अगर आप x on y ले रहे हैं तो x को y की टर्म्स में लिखेंगे, अगर आप y on x ले रहे हैं तो y को x की टर्म्स में लिखेंगे। जो कोफिशिएंट होगा x का वो byx होगा जब आप y को x की टर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि y on x लाइन लिख रहे हैं। फिर bxy निकाला, उनका प्रोडक्ट करके देखा, अगर r की एक वैलिड वैल्यू आती है तो आप कहते हो कि आपकी assumption ठीक है, मतलब जो हमने assume किया है that is correct, means this equation is x on y, this is y on x। अब देखो मैंने क्यों assume किया है इसको, मैं आपको उसके behind रीजन बताती हूँ। देखो जब मैंने देखा ना कि ये x on y से x जब लेफ्ट पे रहेगा y राइट पे जाएगा तो y का कोफिशिएंट हाफ होगा। फिर मैंने यहाँ से देखा था कि जब मैं 2y को राइट पे ले जाऊंगी और x का कोफिशिएंट 3/2 होगा, तो एक का कोफिशिएंट लेस देन 1 था, एक का कोफिशिएंट मोर देन 1 था, तो मुझे वही पता चल गया था कि मुझे इसको x on y लेना चाहिए और इसको y on x लेना चाहिए, ठीक है। देखो अगर आप इसको लेते, इस इक्वेशन को y on x लेते, ठीक है, तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट 2 आता, वो बहुत बड़ा कोफिशिएंट है 2, मोर देन 1 मतलब 2 पर चला गया। और जब आप यहाँ से x का कोफिशिएंट लेते तो वो 2/3, मतलब एक कोफिशिएंट तो बहुत छोटा हो गया और एक कोफिशिएंट बहुत बड़ा हो गया। इसलिए मुझे पता चल गया था कि यहाँ से हाफ और 3/2 रेंज में है एक, ठीक है। तो इसलिए मैंने x on y और y on x को लिया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? बताओ कोई डाउट है यहाँ पर? So this was your third type of problem. ऐसी प्रॉब्लम भी आपको बुक में मिल जाएंगी जो मैं आपको पीडीएफ मैंने भेजी हुई है, एक्सरसाइज मैं आपको भी सेंड कर दूंगी। So this is all about regression analysis. एक प्रॉब्लम इस टाइप की है, एक सीरीज वाली प्रॉब्लम होती है और एक इस टाइप की प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको सारा डेटा गिवन होता है, ठीक है। एंड यू शुड लर्न अबाउट द फॉर्मूले, ऑल्सो लर्न ऑल द फॉर्मूले
यही फॉर्मूले हमेशा यूज करने हैं, ठीक है। ये 2 रिग्रेशन लाइंस होती हैं और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के ये वाले फॉर्मूले भी होते हैं जब आपको सारा डेटा गिवन होता है। एंड रिग्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट is to remember its definition, which is regression is a statistical tool which tells you to predict the value of unknown variable, है ना, for the given values of known variable, whether it is y on x or x on y, whether predicting y for given values of x or predicting x for given values of y, ठीक है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब भी आप आगे रिसर्च भी करेंगे ना, अगर इफ यू आर यू विल बी डूइंग पीएचडी और समथिंग, तो तब भी आपको कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट है उसमें भी यू विल बी नीडिंग रिग्रेशन, ये आपको आना चाहिए। इसके नोट्स ये मैं सेंड कर दूंगी। नाउ विल हैव ब्रेक फॉर 15 मिनट्स ओनली, ठीक है। तो आफ्टर 15 मिनट्स विल ज्वाइन यूजिंग सेशन 2 वाला लिंक, मैं भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है। So let's have break for 15 minutes only. Okay. And we'll be doing curve fitting. Okay class? ओके ओके हाँ मैम। जी, और कल हम ये करते हैं सैम्पलिंग, बहुत सिंपल है सैम्पलिंग, ठीक है। मैम हाइपोथेसिस सैम्पलिंग सेम ही टॉपिक है? हाँ, हाइपोथेसिस सेम ही है, हाँ जी। पहले हाइपोथेसिस सेट करना पड़ता है, फिर सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर 2 बजे। ओके, थैंक यू।